first you must open or you have to display some image on the web page. ठीक है, तो image you can display by using img tag. img src equal to image name. ठीक है, then I'm going to explain you again. Later will implement one program. ठीक है, so this image tag will display image on the web browser. Now suppose if you would like to define a clickable areas on this image, first you are supposed to create a map by using map tag. Map is a pair tag, so create the map using map tag. Just a minute. You can create map using map tag, and when you will create the map, you are supposed to specify the unique name to that particular map. So map name is equal to my map, or you can give any name. Okay. So this map tag is used to define the rules. If you click on the image, what document should get open? Such type of rules you can define here. Okay. Just a minute, students. Okay, map tag. Am I audible, students? So स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So map tag is used to define different clickable areas. Okay, no problem. By using img tag, you can display image on the web page. But after displaying image on the web page, you are supposed to define the clickable areas on the image, and those clickable areas you can define by using map tag. Map is a pair tag. Map tag begins with map. For each and every map, you are supposed to give a unique name by using name attribute. हर एक मैप को आपको एक यूनिक नाम देना है, ठीक है? And you can define n number of areas. Okay, one area you can define by using one area tag. One area you can define by using one area tag. Like n number of areas, clickable areas you can define. Okay. So suppose if I want to define two clickable areas on the image, I will use two area tags between the map. Okay. Now how to define the area? Three attributes you are supposed to use in area tag. Those attributes are shape equal to, then COORDS for coordinates equal to, and HREF equal to. Three attributes you are supposed to specify in one area tag. So मुझे अगर दो एरिया क्लिकेबल एरिया डिफाइन करने हैं तो मुझे दो एरिया टैग मैप टैग के अंदर टाइप करना है, ठीक है? हर एक एरिया टैग में तीन एट्रीब्यूट्स, शेप इक्वल टू, देन कोऑर्डिनेट्स के लिए COORDS इक्वल टू, where COORDS is the name of the attribute. Third attribute is HREF. ये तीनों एट्रीब्यूट आपको एरिया टैग में यूज करना है. हर एक एट्रीब्यूट के लिए आपको वैल्यू स्पेसिफाई करना होता है. लाइक फॉर शेप एट्रीब्यूट यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू आइदर रेक्ट और सर्कल, ठीक है? यू कैन स्पेसिफाई अ रेक्ट वैल्यू और सर्कल, डिपेंड्स हाउ which
which shape you want to, which clickable area you want to define on the image, circular area want to define or rectangular area. अगर आपको rectangular area define करना है तो shape is equal to आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा rect, not rectangle, rect only. So value for the shape attribute. अगर आपको सर्कुलर एरिया डिफाइन करना है क्लिकेबल एरिया तो शेप इज इक्वल टू सर्कल. ठीक है, देन शेप के बाद आपको कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना होता है. इफ योर शेप इज सर्कल देन यू आर सपोज्ड टू स्पेसिफाई थ्री वैल्यूज हियर, थ्री नंबर्स. ठीक है, तो आउट ऑफ दोस थ्री नंबर फर्स्ट टू नंबर्स आर द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कल. So according to this coordinate that clickable circular area will be defined on the on the image. And for third attribute, you are supposed to specify the name of the attribute what you would like to open. Say मुझे table वाला web page open करना है, table.html. ठीक है, so I will specify the name of that particular web page here after href attribute. ठीक है. The second shape, suppose second shape is I want to define rectangular shape. So in area tag I will write here area shape is equal to rect and coordinates for rectangular shape you are supposed to specify four values. For rectangular area you are supposed to specify four values. So how to specify this value I will show you practically. These are the dummy values. Okay, and the last attribute is href. So this area rectangular area will be defined on the image, and if I click on that rectangular area, what web page you would like to open, that web page you are supposed to specify here. In this way you are supposed to define the clickable area on the image. Okay, map simple कैसे create करना है map? Map tag you can create by using map tag. Okay, is a pair tag. You are supposed to close the map tag after defining the last area. Okay, and under map tag you are supposed to define n number of areas. इमेज के ऊपर आपको कितने एरिया डिफाइन करना है, क्लिकेबल एरिया डिफाइन करना है. वन एरिया टैग विल डिफाइन वन एरिया. लाइक मुझे अगर तीन अलग अलग क्लिकेबल एरिया डिफाइन करना है इमेज के ऊपर तो मुझे तीन टाइम एरिया टैग यूज करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ रिमेंबर थ्री एट्रीब्यूट्स यू आर सपोज्ड टू यूज इन एरिया टैग: शेप, COORDS एंड HREF. ठीक है, तो शेप क्या क्या हो सकता है, या तो आप सर्कुलर एरिया डिफाइन कर सकते हैं इमेज के ऊपर, या तो फिर रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन कर सकते हैं. सर्कुलर एरिया डिफाइन करना है क्लिकेबल एरिया तो शेप इज इक्वल टू सर्कल होगा. अगर रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन करना है तो शेप इज इक्वल टू रेक्ट होगा. ठीक है, देन उस शेप के आपको कोऑर्डिनेट्स देना है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शेप यू कैन यूज बाय यूजिंग COORDS एट्रीब्यूट. मेक श्योर दैट कि अगर आपका शेप सर्कुलर शेप है तो आपको तीन वैल्यू देना है कोऑर्डिनेट्स के. थ्री वैल्यूज मींस व्हाट? फर्स्ट टू वैल्यूज आर द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल and third point is the radius of the circle. ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आपको कोऑर्डिनेट्स कितने स्पेसिफाई करना है? फोर वैल्यूज. ठीक है, फर्स्ट टू पॉइंट फॉर टॉप अपर टॉप कॉर्नर के लिए एंड लास्ट टू पॉइंट्स आर फॉर लोअर बॉटम कॉर्नर के लिए, रेक्टेंगल का लोअर बॉटम कॉर्नर के लिए. ठीक है, एंड देन लास्ट एट्रीब्यूट इज HREF. HREF एट्रीब्यूट को आपको क्या देना है? नेम ऑफ द वेब पेज व्हाट यू वुड लाइक टू ओपन. इमेज के ऊपर जो मैंने शेप डिफाइन किया उस शेप के ऊपर क्लिक किया तो क्या वेब पेज ओपन होना चाहिए, उसका नाम यहाँ पे HREF के बाद आएगा. ठीक है, सो प्रैक्टिकली विल ट्राई टू क्रिएट इमेज मैपिंग. ठीक है, अभी ये तो सिर्फ एक्सप्लेन किया मैंने कि आपको इमेज मैप कैसे क्रिएट करना है. हाँ, वन मोर थिंग कि आफ्टर क्रिएटिंग अ मैप व्हाट आर द नेम यू स्पेसिफाई फॉर द मैप टैग, दैट यू मस्ट स्पेसिफाई इन इमेज टैग. जहां से आपने इमेज को डिस्प्ले किया वेब ब्राउजर के ऊपर, तो इमेज टैग में आप यूज मैप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं. यूज मैप इज इक्वल टू, आपको ये वाला नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कंपल्सरी. यहाँ पे आपने रूल डिफाइन किया, ये रूल आपको इस इमेज को अप्लाई करने हैं. ठीक है, सो यूज मैप and then specify this name preceded by hash. Don't forget this. Okay? जो नाम आपने मैप क्रिएट करते वक्त स्पेसिफाई किया है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, preceded by hash. कहाँ पे लिखना है? IMG टैग. ठीक है, so IMG टैग क्या करेगा? ये जो इमेज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो इमेज तो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, लेकिन उस इमेज के ऊपर ये जो रूल्स है वो अप्लाई होने वाले ड्यू टू दिस यूज मैप एट्रीब्यूट. तो हमने रूल यहाँ पे डिफाइन किया है कि कौन से शेप में क्लिक करना है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसका स्पेस कितना है और कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए. ये सब हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है. ठीक है, ओके. नाउ
कोऑर्डिनेट समझने के लिए कि कोऑर्डिनेट कैसे स्पेसिफाई करना है, फॉर दैट लेट मी क्रिएट अ इमेज इन पेन ब्रश। हम पेन ब्रश में एक सिंपल सा इमेज क्रिएट करने वाला है, ठीक है। ठीक है, इतना इमेज मुझे क्रिएट करना है और इमेज के ऊपर मैं थोड़ा ठीक है एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, बस इतना ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर भी देंगे यहाँ पे, तो रेक्टेंगल के लिए ब्लू और ठीक है। पेन ब्रश में मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा इमेज क्रिएट किया है, ठीक है। इस इमेज को हम सेव करने वाले हैं, सेव एज जेपीजी फॉर्म में सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दो, अभी इमेज मैप। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर किया इमेज मैप, उसी फोल्डर में मैंने एक abc.jpg फाइल को क्रिएट किया, ठीक है। इफ यू गो थ्रू द इमेज यू कैन व्यू, देखो इमेज मैप फोल्डर किया डेस्कटॉप के ऊपर, इमेज आ गया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे देना होता है स्टूडेंट, देखो अभी तो ये जो इमेज है, इमेज का टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट 0 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। दिस इज द विड्थ ऑफ दिस इमेज एंड दिस इज द हाइट ऑफ दिस इमेज। तो ये विड्थ देखो यहाँ से इंक्रीज होते गया, अगर ये सपोज 100% अगर हमने विड्थ देखा तो ये 0 0 है, मींस यहाँ से विड्थ स्टार्ट हुआ 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये पॉइंट हो गया 100। विड्थ का क्या पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ये विड्थ का कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर 100। उसी तरह हाइट का 0 पॉइंट है, हाइट इंक्रीज हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 100, तो ये हाइट का 100 पॉइंट। मेक श्योर दैट कि इस पॉइंट को हम बोलेंगे 0 0। देखो हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x वैल्यू एंड y वैल्यू। अज्यूम दैट दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 100 0, है ना। ये विड्थ देखो, विड्थ इंक्रीज होते गया, लेकिन हाइट तो उतना ही है 0 वाला। ये हाइट अगर 0 है तो ये हाइट 10 हो गया, हाइट 20 हो गया, हाइट 30 हो गया। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, आपको पेन ब्रश में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है वो समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। पेन ब्रश में ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर समझ में आए तो आप कोऑर्डिनेट इजीली स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा लिखने के लिए मैं थोड़ा इसका स्पेस थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, लिखते आना चाहिए इसीलिए, दैट्स ऑल। करो इतना ही इमेज है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, 0 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये अगर सपोज विड्थ 10 है यहां तक, यहाँ विड्थ है 20, तो एग्जैक्टली मिडल पे हाइट होगा 50, यहाँ पे सपोज 60 है, तो ये होगा पूरा 100% विड्थ। ये लास्ट पॉइंट क्या है, 100, ठीक है। तो ये देखो अगर ये पॉइंट अगर आपने कंसीडर किया, ये पॉइंट, तो ये 0 0 मींस x रिप्रेजेंट द विड्थ, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ, और दूसरा कोऑर्डिनेट y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट, ठीक है। तो ये हाइट अगर 0 है, ये इस पॉइंट का हाइट अगर 0, तो इस वाले पॉइंट का भी हाइट 0 ही होगा, एक ही लेवल पे, ठीक है। तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 100 विड्थ है और हाइट कितना है, 0। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ये 0 0 है, तो विड्थ इंक्रीज होते गए, हाइट तो उतना ही है,
विड्थ 10 हो गया, विड्थ 20, विड्थ 30, यहाँ पे ये एग्जैक्टली मिडिल पे विड्थ 50, विड्थ 60, ऐसा करते करते इसका विड्थ कितना है 100, हाइट उतना ही है 0। उसी तरह ये हाइट इसको बोलते हो, अगर ये 0 हाइट है तो यहाँ पर होगा 10 हाइट, 10 एक वाई एक्सिस, यहाँ पर होगा 20, तो एग्जैक्टली मिडल, अगर ये पूरा 100% हाइट है तो एग्जैक्टली मिडल पे कितना हाइट होगा इस इमेज का 50। ऐसा करते करते ये हाइट कितना है, ये हाइट है 100, इस पॉइंट का, ये कॉर्नर पॉइंट है, इसका हाइट कितना है 100। और एक कॉर्नर कॉर्नर वाला जो पॉइंट है इसके कॉर्नर्स क्या बोल सकते हैं आप, क्या हो सकते हैं, देखो विड्थ, ये जो 0 0 मींस x रिप्रेजेंट विड्थ, विड्थ 0 इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का भी विड्थ 0 ही होगा क्योंकि एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो ये जो वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,100, x वैल्यू विड्थ कितना है 0, हाइट कितना है 100। तो अगर मैंने ये पॉइंट अगर लोकेट किया, ये वाला पॉइंट यहां से, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल सकते हैं, तो इसका देखो विड्थ कितना है 20, देखो ये यहां से यहां तक कितना विड्थ है 20, तो विड्थ है 20, और हाइट कितना है इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट का हाइट कितना है, तो 0 से स्टार्ट किया तो ये हाइट 100 है यहाँ पर, है ना, 100 के लेवल पे है, तो 20,100 इज द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर, इसका लोकेशन क्या हो सकता है 20,100। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना तो आपको शेप में कोऑर्डिनेट इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे एक बनाया तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, तो देखो इसका विड्थ, देखो इस पॉइंट का विड्थ कितना है, तो विड्थ ग्रेटर देन 20, आपको ग्रेटर देन 20 और 50 से कम है, 50 के बाहर तो नहीं है। देखो विड्थ इंक्रीज होते का यहाँ से 10 20 30 40 ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ विड्थ कितना हो सकता है 30, ऐसे यहाँ पर अगर इस लेवल पे आ रहा है पॉइंट विड्थ के, तो इसका विड्थ हो सकता है, इस पॉइंट का विड्थ हो सकता है 30, कॉमा हाइट कितना है, हाइट देखो 10 20 30, एग्जैक्टली मिडल 50 होता है, तो मिडल से तो ऊपर है थोड़ा, तो ये 48 45 हो सकता है इसका हाइट। ये जो पॉइंट है जस्ट अबो, ये जो लेवल है 50 वाला लेवल है उसके ऊपर है, 48 हो सकता है, 48। तो ये जो पॉइंट है मैंने ड्रॉ किया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 30,48। हर एक पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू, तो दिस इज द एक्स वैल्यू एंड दिस इज द वाई वैल्यू, ठीक है। तो अगर सर्कल शेप आपको डिफाइन करना है, मैंने शेप दिया, शेप इज इक्वल टू सर्कल, तो सर्कल के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट देना है, तीन कोऑर्डिनेट्स। तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, पहले तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, और एक दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस का लेंथ, अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल शेप इज डिफाइंड, ठीक है। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, आपको इस पॉइंट का एक्स वैल्यू जो है 50 से कम है, यहाँ पे 40 हो सकता है, विड्थ 40 हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे इस लेवल पे है ना वो पॉइंट, तो एक्स वैल्यू हो सकता है 40, कॉमा इस पॉइंट का वाई वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको 20 से ज्यादा है थोड़ा, 22 25 हो सकता है, 20 से थोड़ा ज्यादा है, इस लेवल पे है ना, इस लेवल पे वो पॉइंट हाइट का, तो 20 से ज्यादा है 22 हो सकता है, तो 40,22 these are the coordinates for the center point of the circle। और रेडियस कितना बड़ा सर्कल चाहिए आपको, जितना आप रेडियस का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उतना सर्कल बढ़ते जाएगा, ठीक है। एज्यूम करो कि रेडियस अगर 5 है तो इतना सर्कल बन जाएगा सर्कल इमेज के ऊपर एप्लीकेबल एरिया, अगर आपने सर्कल के लिए तीन कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किए तो पहले दो पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट सेंटर के लिए और तीसरा पॉइंट होता है रेडियस के लिए। तो अगर रेडियस का इंक्रीज किया सपोज आपने 15 किया तो इतना बड़ा सर्कल डिफाइन होगा सर्कल इमेज के ऊपर, बड़ा सर्कल डिफाइन होगा। कितना बड़ा सर्कल आपको डिफाइन करना है, कोऑर्डिनेट सेंटर पॉइंट का सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने रेडियस इंक्रीज किया तो बड़ा सर्कल आप डिफाइन कर सकते हो एप्लीकेबल एरिया ऑन इमेज। तो इस इमेज के ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो नया वेब पेज आप ओपन कर सकते हो। उसी तरह अगर आपका शेप रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए आपको चार पॉइंट देने होते हैं, चार पॉइंट कौन से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। होप यू अंडरस्टूड दिस। एरिया टाइप में अगर शेप रेक्टेंगल यूज किया है, शेप इज इक्वल टू रेक्ट, तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स पे चार नंबर आपको देने होते हैं। चार नंबर कैसे,
इस वाला कॉर्नर का पॉइंट, तो इस वाले कॉर्नर के पॉइंट, 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं? एक और पॉइंट है तो 2 वैल्यूज उसकी, विड्थ का वैल्यू कितना हो सकता है? देखो इस लेवल पे तो 60 से ज्यादा है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो सकता है 70, एफ का वैल्यू होगा 70, और इस पॉइंट का अगर हाइट देखा, हाइट कौन से लेवल पे? इस वाले लेवल पे, तो 20 से ज्यादा है, 50 से कम है, तो 30 भी हो सकता है, तो 70, 30 हो सकता है इसका पॉइंट। ठीक है, तो ये दो वैल्यू पहले अपर टॉप कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स और लोअर बॉटम कॉर्नर के कोऑर्डिनेट, अभी ये जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो विड्थ, उसका विड्थ है 100 से कम, 90 तक हो सकता है, 90, कॉमा इसका हाइट कितना है? हाइट 50 से थोड़ा ज्यादा है, 52। ठीक है, तो ऐसे 4 वैल्यूज आपको रेक्टेंगुलर शेप के लिए देना है, इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स। होप यू अंडरस्टूड इट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट की कोऑर्डिनेट कैसे देना है शेप के लिए? इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी नाउ ओनली, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी नाउ। देखो, आपको शेप डिपेंड करने के लिए शेप के कोऑर्डिनेट देना है, शेप के कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है बहुत, कि कैसे डिपेंड करना है शेप। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कैसे स्पेसिफाई करना है? एनी डाउट? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. नो डाउट ना? अप टू दिस नो डाउट? Okay. Okay, so now we'll try to write one simple program on that image to define the image map. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इमेज क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे, इमेज मैप में सेव किया है इमेज। इमेज का नाम क्या है? abc.jpg, abc.jpg का इमेज। नाउ अभी हमको क्या इंप्लीमेंट करना है? फर्स्ट we'll write a program to display this image on the web page। सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे ना हम नोटपैड में। ठीक है, नया HTML प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं, तो HTML/HTML। ठीक है, तो हेडिंग सेक्शन को मैं स्किप कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी सेक्शन यूज कर रहा हूं। बॉडी सेक्शन में मुझे क्या करना है? सिंपली इमेज डिस्प्ले करना है। ठीक है, कौन सा इमेज डिस्प्ले करना है? abc.jpg। तो इमेज को मैं कैसे डिस्प्ले कर सकता हूँ? img टैग से, img src इक्वल टू abc.jpg। ठीक है, सेव करते प्रोग्राम को, चेक करते कि इमेज डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी ये प्रोग्राम मुझे कहाँ पे सेव करना है? उसी फोल्डर में करना है जहाँ पे मैंने इमेज स्टोर किया है, इमेज मैप फोल्डर। ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं नाम दे रहा हूँ imgmap.html। Save। Let open this web page। तो देखो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं इमेज? ये पूरा इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अभी मुझे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है? इफ आई क्लिक, अभी मैं क्लिक कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एरिया कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। व्हाट आई वांट दैट इफ आई क्लिक ऑन सर्कल इट शुड ओपन अ न्यू वेब पेज, जिसके ऊपर सर्कल का इंफॉर्मेशन होगा। अगर मैंने इसी इमेज के रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया तो एक सेपरेट वेब पेज होना चाहिए जो कि मुझे रेक्टेंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा कंसेप्ट आपको इंप्लीमेंट करना है। अभी अभी यहां तक हमने सिर्फ एक इमेज डिस्प्ले किया, इमेज टैग्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले, सर्कल और रेक्टेंगुलर के लिए एक सेपरेट वेब पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम सेव करके रखेंगे। न्यू प्रोग्राम मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, न्यू प्रोग्राम। प्रीवियस प्रोग्राम में हमको चेंज करना है। अभी हम क्या कर रहे थे? सेपरेट HTML प्रोग्राम लिख रहे हैं सर्कल और रेक्टेंगुलर वेब पेज के। तो नया प्रोग्राम है बॉडी सेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे? फिर एक हेडिंग डिस्प्ले करेंगे H1। एज्यूम ग्रुप ये सर्कल वाला वेब पेज, सर्कल वेब पेज, H1। बस उसको इतना सेव, इतने पार्ट सेव करेंगे, सेव एज।
इमेज में आप उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूँ c.html। सर्कल इस वेब पेज का नाम क्या है? c.html। ठीक है, देखो आपके फोल्डर में आपको दिखाई देगा अभी डेस्कटॉप के फोल्डर में 3 अभी वेब पेज हो गए, इमेज मैप वाला प्रोग्राम और सर्कल। अभी सर्कल का प्रोग्राम कौन सा है? सिर्फ एक सर्कल के बारे में हेडिंग डिस्प्ले करनी है। सेपरेट वेब पेज इज क्रिएटेड इन द सेम मैनर विल क्रिएट वेब पेज फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, एंड हियर विल सेव एज दिस प्रोग्राम रेक्टेंगल वेब पेज। सेव एज कर रहा हूं मैं दूसरा कॉपी एंड उसी फोल्डर में सेव कर रहा हूं, नेम है r.html। ठीक है, बस इनका काम हो गया अभी। तो फोल्डर में देखो एक इमेज मैप वाला प्रोग्राम है, एक सर्कल c.html है और r.html। r.html में क्या है? एक हेडिंग है रेक्टेंगल वेब पेज। ठीक है, c.html क्या है? सर्कल वेब पेज। ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू ओपन दिस वेब पेज। इमेज मैप वाला जो प्रोग्राम उसमें हमने इमेज डिस्प्ले किया। अभी हमको क्या करना है? इमेज मैप डिफाइन करना है। अगर सर्कल के ऊपर क्लिक किया तो सर्कल वाला वेब पेज ओपन होना चाहिए, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया तो रेक्टेंगल वाला वेब पेज ओपन होना चाहिए। वो अभी हमको इंप्लीमेंट करना है। तो चेंजेस कहां पे करना पड़ेगा? इमेज मैप वाले प्रोग्राम के अंदर। तो ये प्रोग्राम मुझे ओपन करना है नोटपैड। ठीक है, तो इसमें तो हमने सिर्फ इमेज डिस्प्ले किया है। अभी मुझे क्या करना है? इमेज मैप इंप्लीमेंट करना है। तो मुझे पहले मैप रूल डिफाइन करना पड़ेगा। मैप रूल आई कैन डिफाइन बाय द मैप टैग। मैप नेम, मैप को नेम देते हैं, नेम इज इक्वल टू माय मैप। मैप इज अ पेयर टैग, so you are supposed to close that map. Okay, now मैप टैग में आपको क्या यूज करना है? देखो अभी मुझे इस इमेज के ऊपर 2 क्लिकेबल एरिया डिफाइन करना है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इमेज मैप वाला प्रोग्राम, इसमें तो इमेज डिस्प्ले किया, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 इमेज क्लिकेबल एरिया डिफाइन करना है। पहला एरिया यहाँ पर क्लिक किया तो सर्कल वाला वेब पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ये दूसरा एरिया डिफाइन करना है, यहाँ पर क्लिक किया तो रेक्टेंगल वाला वेब पेज होना चाहिए। तो मुझे 2 एरिया डिफाइन करने हैं। तो मैप टैग में मुझे 2 टाइम एरिया लिखना पड़ेगा, AREA, 2 एरिया टैग डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एरिया हम ये वाला एरिया डिफाइन करेंगे। कौन सा? ये, इसको डिफाइन करें, ये वाला एरिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्रोग्राम में? पहले एरिया टैग में शेप इज इक्वल टू सर्कल एंड नेक्स्ट एक्टिविटी COORDS कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू। तो सर्कल शेप के लिए कितने पॉइंट देने होते हैं? 3 पॉइंट। तो इस सर्कल के एरिया को डिफाइन करना है तो कोऑर्डिनेट्स मुझे 3 देना पड़ेगा। इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट। तो एज्यूम करो कि अगर 0 0 विड्थ है, ठीक है, तो अगर सपोज हमने इमेज का हाइट और विड्थ भी एज्यूम कर लिया, सपोज सेट किया विड्थ WIDTH, विड्थ इक्वल टू से 400, HERGST हाइट इज इक्वल टू 400। ठीक है, थोड़ा रेजोल्यूशन में इमेज का चेंज कर रहा हूं। तो ये जो इमेज टैग क्या करेगा? इस इमेज को abc.jpg इमेज को इस रेजोल्यूशन में डिस्प्ले करेगा। विड्थ 400, हाइट 400। देखो इससे चेंज क्या हो रहा है, पहले मुझे सेव करने दो। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दिस इज 400 400, तो ये 0 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 400। हाइट भी 400, तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 400। ठीक है, 0 0 100 200, बीच में एग्जैक्टली 200 है, ये यहाँ पर 400 है। ठीक है, ये 0 है हाइट, एग्जैक्टली मेरे 200 हाइट है, ये 400 हाइट है। देखो हम कैसे आइडेंटिफाई किया? विड्थ और हाइट सेट किया है इमेज का। विड्थ इज इक्वल टू 400, हाइट इज इक्वल टू 400। ठीक है, देन अभी क्या करेंगे हम? उस पॉइंट एरिया के कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने वाले। ठीक है, तो ये सर्कल के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना है, सेंटर पॉइंट एंड रेडियस। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, जो आपके मेरा पॉइंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? तो आपको मिडल 200 से कम है, ये विड्थ का वैल्यू 200 से कम है, लेट्स से 180। ट्राई करके देखेंगे कितना है। ठीक है, और हाइट का वैल्यू, इस पॉइंट का हाइट का वैल्यू कितना हो सकता है? अगेन 200 से तो कम है, 140 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, 180 140 ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स 180 140 कोऑर्डिनेट्स हो गए।
सेंटर पॉइंट, और रेडियस को मैं डिफाइन कर रहा हूं से 20, ठीक है। देन HREF, इस एरिया के ऊपर क्लिक किया तो क्या वेब पेज ओपन होना चाहिए, तो C.HTML जो सर्कल वाला वेब पेज हमने क्रिएट किया है, C.HTML ओपन होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक एरिया डिफाइन किया मैप टैग के अंदर, ठीक है। लेट्स सेव दिस। और अभी इस मैप का नाम क्या है, माय मैप। तो अगर ये रूल जो मैंने डिफाइन किया है इस इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो इस इमेज टैग में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यूज मैप इज इक्वल टू हैश, एंड ये जो नाम आपने दिया है विदाउट स्पेलिंग इसे कॉपी पेस्ट कर दो इधर, ठीक है। तो ये मैप में आपने जो एरिया डिफाइन किया है वो एरिया इस इमेज को एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस इमेज के इस एरिया के ऊपर, सर्कुलर एरिया के ऊपर अगर क्लिक किया तो ये वेब पेज ओपन होगा, तो उसका मीनिंग, ठीक है। सेव करते इस प्रोग्राम को और रन करके देखो, ठीक है। अगर आपने माउस मूव किया तो देखो कहीं ना कहीं तो हैंड शेप आएगा, हमारे कोऑर्डिनेट्स गलत हो रहे हैं, बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम पहले फाइंड तो करेंगे कि एटलीस्ट कहां पे वो पॉइंट क्रिएट हुआ है। ठीक है, थोड़ा ये इसका साइज बढ़ाएंगे, 100 कर देंगे यहाँ पर, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश। shape is equal to text, अच्छा, COORES चाहिए यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, देखो बराबर उस जगह पे सर्कुलर एरिया पे हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अगर उस शेप के ऊपर क्लिक किया तो सर्कल वाला वेब पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा हाइट, सॉरी ये जो है ना रेडियस ज्यादा दे दिया हमने, यहाँ पर 20 दिया, तो यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है वो सेंटर पॉइंट हमारा गलत हो रहा है, सेंटर पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। सेंटर पॉइंट का हाइट हमको थोड़ा कम करना है और विड्थ भी थोड़ा कम करना है, तो हाइट और विड्थ कम करना है, तो 170 और 130। तो आपके एडजस्टमेंट के ऊपर है कि आप कोऑर्डिनेट्स को कैसे देना है। यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है यहाँ तक, और विड्थ और हाइट को कम करना पड़ेगा, 160, 120, रिफ्रेश, विड्थ तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, save the changes and refresh, और थोड़ा विड्थ को कम करना पड़ेगा 140, और यहाँ पे थोड़ा रेडियस इंक्रीज कर देते 30। बराबर सर्कल के ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट हुआ, सर्कल के ऊपर अगर क्लिक किया तो रेक्टेंगुलर, सॉरी सर्कुलर वेब पेज को हम ओपन कर पा रहे हैं। अभी रेक्टेंगुलर या तो कुछ हमने डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे, हो नहीं पा रहे, तो हमने एरिया डिफाइन नहीं किया, तो सेकंड एरिया क्लिकेबल एरिया आप डिफाइन करेंगे मैप टैग के अंदर। मैप टैग के अंदर सेकंड एरिया शेप इज इक्वल टू, कौन सा शेप आपको डिफाइन करना है, रेक्टेंगुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने लेने हैं, 4 कोऑर्डिनेट, COORDS इक्वल, तो 4 कोऑर्डिनेट किस लेने होते हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया डिफाइन करना है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट
और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? तो ये 0 है और ये 400, तो हाइट ऑफकोर्स 400 से ज्यादा है, मिडल 200 से ज्यादा है ना। ये अगर 0 है और ये विड्थ अगर 400 है तो एग्जैक्टली मिडल कितना आएगा? 200। तो 200 यहाँ से 200 से ज्यादा है, 300 यहाँ पे हो सकता है, 300 हाइट विड्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं विड्थ 300 उस पॉइंट का। देन उस पॉइंट का हाइट कितना है? उसी पॉइंट का, इसी पॉइंट का हाइट। तो ऑफकोर्स मिडल, ये अगर 0 हाइट है और ये अगर 400 हाइट है तो एग्जैक्टली मिडल कितना आएगा? एग्जैक्टली मिडल 200 हाइट आएगा। तो एग्जैक्टली मिडल में तो लग रहा है हाइट उसका, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे 200। फिर उसके बाद दो पॉइंट बचे हैं, इस वाले पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट। तो इसका विड्थ कितना है? तो ऑफकोर्स अगर इसका ये विड्थ हमने 300 लिया है तो ये 300 से ज्यादा ही होगा विड्थ, ये इस पॉइंट का, है ना। इस लेवल का पॉइंट अगर 300 हमने लिया है तो ये ऑफकोर्स 300 से ज्यादा होने वाला है ये, और 400 से कम, तो 350। और उसी पॉइंट का बाद में हमको देना है हाइट, इस पॉइंट का हाइट। हाइट कितना होगा? अगर ये हाइट हमने यहाँ पे 200 लिया है, सॉरी इस पॉइंट का हाइट 200 है तो ये कम होना होगा थोड़ा, तो ये यहाँ पर चाहिए 100 और 150, यहाँ पे देंगे 200। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट डिफाइन किया। देन उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है? HRF इज इक्वल टू, आपको रेक्टेंगुलर वाला वेब पेज ओपन करना है, उसका नाम है r.html। सेव दिस एंड रिफ्रेश दिस वेब पेज। तो देखो यहाँ कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट हुआ बराबर शेप के ऊपर, ठीक है। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस रेक्टेंगल शेप, सेकंड वेब पेज गेट ओपन, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आपको इमेज मैपिंग का कांसेप्ट क्रिएट करना होगा। एनी डाउट स्टूडेंट्स हियर इन दिस प्रोग्राम? एनी डाउट? नो सर। Yes, you can take the screenshot of it. Important क्या है इसमें? कोऑर्डिनेट देना इंपॉर्टेंट है। अगर रेक्टेंगुलर शेप आपको डिफाइन करना है तो रेक्टेंगुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे देना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर एरिया डिफाइन करना है सर्कल, तो सर्कल के लिए 3 ही कोऑर्डिनेट देने होते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना है उस शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम, सिंपल इमेज मैप। तो कौन से भी इमेज के ऊपर आप कितने भी एरिया को डिपेंड कर सकते हैं, सर्कुलर एरिया और रेक्टेंगुलर एरिया, एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट एरिया यू कैन लिंक दैट एरिया विद सम अदर वेब पेज। Such a concept is nothing but image map. ठीक है। तो here we complete with this topic image mapping. उसमें असाइनमेंट एक ही दिया है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सेट वाला करके दिखाया अभी। ठीक है, create a picture in paintbrush consisting of circle, rectangle, triangle and square. Insert this picture on web page. Create image map such that once click on circle shape, it should display the web page about the circle. Once you click on square, it should display the separate web page in new tab and so on.